जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर आप मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। Surprised that you didn't really put things in context before you gave your speeches. We have almost 30,000 Palestinians murdered by the Israeli regime, over 12,000 children. We have over 90% of the population are starving now. Babies have been born to malnourished mothers and they're only living for a few days. And you're saying that there's an unacceptable violation of international law going on and it's the Houthis doing it? Under international law, we have an obligation to prevent genocide taking place. The EU has done nothing to stop the genocide taking place. The Houthis have done something about it, and by interfering with shipping, facilitating the genocide. How, in God's name, how can you just turn a blind eye to the truth of what's really happening? The Houthis have killed nobody with the interference of the ships. Israel has killed 30,000, and you're giving out about the Houthis who've killed nobody. You're putting shipping before the lives of Palestinians. You just don't give a damn about the Palestinian lives, and that's the truth of the matter. And you're worried about spillover. In international law, Israel is bombing Lebanon, is bombing Syria, is bombing Gaza, and you're worried about the Yemenis interfering with ships because there's money been lost over it? Is it a joke? Honestly, I just don't understand how you can take this perspective. What he's going to do about it? Is he ever going to tell Israel that they're committing a genocide? Because if this is not a genocide that's going on in Gaza, then what would you call it? That's one of my questions to you. I want you to know, what would you call what's going on in Gaza if it's not a genocide? And my other question to you is, if right now the US and UK are bombing cities in Yemen, do you think that's against the UN Charter? Because I do. Please tell me. It might be okay with the international rules-based order that just make up as you go along, but it is not okay with the UN Charter. Give us a break. अमेरिका ने ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स पर हमले के नाम पर सीरिया और इराक में सिविलियंस और डिफेंस सेंटर्स को निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि तमाम बेगुनाह आम लोगों की मौत हुई है। इराक सरकार ने अमेरिका के राजदूत को बुलाकर लताड़ा है। सीरिया ने भी इस हमले को शार्पली क्रिटिसाइज किया है। ओमान ने सीरिया के तरफ सपोर्ट जताया है। तमाम जानकारों का कहना है कि असल में अमेरिका सीरिया और इराक में अपने कब्जे को कायम रखना चाहता है। साथ ही वो इसराइल के साथ मिलकर मुस्लिम मुल्कों को जलील करते हुए अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता है। और दोस्तों, अगर कुछ जानकारों की माने तो ज्यादातर मुस्लिम मुल्क और तुर्की पूरी तरह से अमेरिका के चुंगल में हैं। वहीं ईरान और उसके सपोर्टेड ग्रुप्स हमास रेजिस्टेंस की अगुवाई कर रहे हैं। दोस्तों, कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद कुद्स फोर्सेस की कमान संभालने के 4 साल बाद जनरल कानी वेस्ट एशिया में ईरान सपोर्टेड मिलिशिया के साथ बढ़ते हुए रीजनल क्राइसिस के सेंटर में हैं, जो अमेरिकी और इजरायली सैनिकों के साथ साथ कमर्शियल वेसल्स पर रेड सी हमले को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जनवरी 2020 में बगदाद हवाई अड्डे के बाहर अमेरिका के तरफ से कासिम सुलेमानी की हत्या के फौरन बाद जब इस्माइल कानी को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एक एलीट विंग कुद्स फोर्स की अगुवाई करने के लिए चुना गया था, तो कई लोगों को डाउट था कि क्या ये वेटरन कामयाब रहेगा शेडो कमांडर के बहुत बड़े जूते भरने के लिए। दरअसल इन तमाम सालों में सुलेमानी, जो 1998 से अपनी मौत तक कुद्स फोर्स के चीफ थे, उन्होंने रेवोल्यूशन के प्रोटेक्टर और वेस्ट एशिया में ईरानी इन्फ्लुएंस के मल्टीप्लायर फोर्स के तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक में एक मैथिकल स्टेटस बनाया था।
जब सुलेमानी कुद्स फोर्स की अगुवाई कर रहे थे, तब सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खुमैनी ने उन्हें अ लिविंग मार्टर यानी एक जिंदा शहीद कहा था। उनके ओपोनेंट्स या क्रिटिक्स और उनके तमाम एडमायरर्स दोनों ने उन्हें तेहरान के तरफ वफादार मिलिशिया के नेटवर्क को मजबूत बनाने में उनके रोल के लिए लिंच पिन के तौर पर डिस्क्राइब किया था, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाने लगा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ईरान की प्रॉक्सीज के वाइस रॉय थे और उनकी मौत से न सिर्फ तेहरान के कमांड स्ट्रक्चर में बल्कि इसके आगे के डिफेंस डॉक्ट्रिन में भी एक बड़ा वैक्यूम छूट गया है और इस स्पेस को जनरल कानी को भरना था। अब 4 साल बाद जनरल कानी वेस्ट एशिया में बढ़ते रीजनल सिक्योरिटी क्राइसिस के सेंटर में हैं। आईआरजीसी के एक्सटर्नल आर्म के तौर पर कुद्स फोर्स, हिजबुल्लाह लेबनान से लेकर हमास फिलिस्तीन और हुतीस यमन से लेकर कताइब हिजबुल्लाह इराक तक अलग अलग ईरान सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल हमास जंग छिड़ने के बाद से ये एक्सिस हाइपर एक्टिव हो गया है। हिजबुल्लाह सदरन लेबनान से लिमिटेड तरीके से इजरायली सैनिकों को एंगेज कर रहा है। हुतियों ने रेड सी को जंग के मैदान में बदल दिया है और कताइब हिजबुल्लाह समेत इराक बेस्ड पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने 7 अक्टूबर से इराक, सीरिया और जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों और एसेट्स पर कम से कम 165 यानी 165 हमले करे हैं। दोस्तों, 28 जनवरी को जॉर्डन में एक अमेरिकी लॉजिस्टिक हब पर ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सर्विस पर्सनल मारे गए थे। कहा जा रहा है कि इस हमले को कताइब हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया था। इस हमले के बाद से लगातार तनाव बढ़ रहा था। जानकारों के मुताबिक इस हमले के बाद से वॉशिंगटन में ईरान पर सीधे हमले की मांग उठने लगी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका जनरल कानी के नेटवर्क पर लगाम लगा पाएगा? 1967 में मशहद के होली सिटी में पैदा हुए थे ये होली सिटी ऑफ मशहद, जो शिया इस्लाम के 8वें इमाम रजा के श्राइन की मेजबानी करता है। उसी शहर में इस्माइल कानी शाह फारस में पले बढ़े। अपनी पीढ़ी के लाखों लोगों की तरह वो भी 1970 के दशक की रेवोल्यूशनरी फर्वर से इन्फ्लुएंस थे, जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया था और उसकी हजारों साल पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंका था। 1980 के दशक की शुरुआत में जब नई थियोक्रेटिक रिपब्लिक सद्दाम हुसैन के इराक के साथ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था, तब कानी आईआरजीसी में शामिल हो गए थे, जिसको 1979 के रेवोल्यूशन के फौरन बाद इस्लामिक रिपब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। जनरल कानी ने कुद्स फोर्सेस की कमान ऐसे वक्त में संभाली जब इजराइल और ईरान के बीच शेडो वॉर तेज हो रही थी। अमेरिका को उम्मीद थी कि सुलेमानी को बाहर निकालने से ईरान का ओवरसीज ऑपरेशन कमजोर हो जाएगा, लेकिन 2020 से जनरल कानी की कमान के तहत कुद्स फोर्सेस ने मिलिशिया के लिए अपना सपोर्ट दोगुना कर दिया। इसी टाइम के दौरान इसराइल ने ईरान के अंदर और बाहर दोनों जगह ईरानी एसेट्स और हस्तियों के खिलाफ टारगेटेड हमले तेज कर दिए थे। ईरान सिलसिलेवार प्रोटेस्ट से जूझ रहा था। मुस्लिम मुल्क इसराइल के करीब आ रहे थे, मुल्ला दबाव में थे। 2023 की शुरुआत में जनरल कानी ने ईरान सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप्स के नेताओं के साथ कई सीक्रेट बैठकें करी थीं, जिनकी रिपोर्ट बाद में सामने आई। उनका एजेंडा इजरायली ठिकानों पर हमलों की एक नई लहर शुरू करना था। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद जनरल कानी ने पब्लिकली हमास के लिए कुछ फोर्स के सपोर्ट का ऐलान किया। जनरल कानी ने हमास को एक पैगाम में कहा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में आपके भाई आपके साथ एकजुट हैं। रेजिस्टेंस दुश्मन को गजा और फिलिस्तीन में अपने गंदे ऑब्जेक्ट्स को हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। हकीकत यह है कि वो झांसा नहीं दे रहे थे। पिछले 4 महीनों में एक्सिस ने रेड सी से लेकर जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों तक कई हमले करे हैं, जिससे गजा जंग एक रीजनल सिक्योरिटी क्राइसिस में बदल गई है। अब ईरान सपोर्टेड मिलिशिया के जॉर्डन हमले और सीरिया और इराक में अमेरिका के जवाबी हमलों के साथ यह सिक्योरिटी क्राइसिस जवाबी सर्किल ऑफ वायलेंस में दाखिल कर गया है, जिसमें चारों तरफा जंग की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, जिसमें जनरल इस्माइल कानी इस वायलेंस के सर्किल के सेंटर में बैठे हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों किसी और दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर अकाउंट है @ArshieAzizKhan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।